Good morning, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 9 math subject chapter number 1. In a last video I have explained chapter number 1, 1.1, 1.2, 1.3. In this video we will learn exercise 1.4. So here now we have to learn the visualize. Okay, see in this exercise 1.4 we have to visualize the number from the number line. Okay, see 1, visualize 3.765 on the number line using successive magnificence. तो मैग्निफिकेशन ग्लास से वी हैव टू विजुलाइज 3.765 फ्रॉम द नंबर लाइन. So first of all we have to draw the number line and we have to decide that 3.765 comes to between 3 and 4. Okay, so see this is the number line, this 0, this minus 2. Okay, go ahead, minus 3, minus 4, same thing. And in the right hand side 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now I told you that 3.765 comes to between 3 and 4. So first of all we have to visualize only 3 and 4. Okay, so we will see what is between 3 and 4. Okay, so 3 and 4. Now from here we will make another line, okay, number line, so that we can see 3 and here 4. So what is between 3 and 4? So we will see 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. Okay, now 3.765, that comes to 3.7 and 3.8. Okay, again 3.765 comes to between 3.7 and 3.8. So see 3.7 and 3.8. Now we have to again magnify between 3.7 and 3.8. So again we will make another line, number line. So this is a 3.7 and this 3.8. Now what is between them? Okay, so we will see, okay, 3.71, 3.72, 3.73. okay, like that we have to 3.79. now 3.765 comes to between 3.76 and 3.77. okay, so again we will make another number line, 3.76 and 3.77. okay, again we have to visualize, we have to find out the number 3.765. okay, so we will see 3.76, 3.761, 3.762, 3.764. okay, again the 3.762, 3.763, 3.764 और यहाँ पर आएगा 3.765, जो नंबर हमें क्या करना है, विजुलाइज करना है. तो वी कैन सी दिस नंबर. सो अवर आंसर इज दिस. okay, so we have to find out in number line by visualizing 3.765. like that you have to find out any number from this number line. okay friends, so let's see one more sum so that you can understand in a better way. So here the second sum is visualize 4.26. now in 26 have a bar means the same number is repeated again and again. So visualize 4.26 on the number line up to 4 decimal places. to 4 decimal place, 4 decimal में पॉइंट के बाद 4 डेसिमल, यहाँ पर 26 अगेन 26 यानी 4 डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे. ओके, सी तो 4.26 इक्वल टू 4.2626 हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, यहाँ पर बोला है कहाँ 4 डेसिमल पॉइंट. अगर 5 बोला होता तो यहाँ आगे और 2 आ जाता, 6 बोला होता तो फिर से क्या हो जाता,
तो 262626 3 टाइम हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 4 टाइम बोला है तो पॉइंट के बाद वी हैव टू सी द 4 डिजिट, तो 2626। ओके, नाउ वी विल सी कि 4.26 comes to between 4 and 5. Okay, so first of all we have to make the number line, we have to put the number like a 0, -1, -2. Okay, here we have to find out the positive number, so we have to main focus on positive integers. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now we have to magnify between 4 and 5. Okay, so see this 4 and 5 because 4.2626 comes to between 4 and 5. So here we can make another number line, that is 4 and this 5. So we have to visualize के 4 और 5 के बीच में क्या है, तो we can see कि 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9. Okay, now we have to find out 4.2626, that means this comes to between 4.2 and 4.3. ये जो हमारा नंबर है 4.2626 वो 4.2 4.3 के क्या आएगा, बीच में आएगा, तो हमें उसको क्या करना है, मैग्नीफाइड करना है। तो 4.2 और ये 4.3 उसके बीच में क्या आएगा, तो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25, उसके बाद आएगा 4.26 एंड 4.27। अभी हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है 4.2626 फाइंड आउट करना है, तो वो किसके बीच में आएगा, तो 4.26 और 4.27 के मिडल में आएगा। ओके, तो वी हैव टू मैग्नीफाइड 4.26 एंड 4.27, तो उसको मैग्नीफाइड करेंगे, अनदर एक नंबर लाइन बना के उसको विजुलाइज करेंगे, तो 4.26 और यहाँ पर 4.27। अभी उसको विजुलाइज करेंगे तो क्या आएगा कि 4.26 है, तो उसके बाद क्या आएगा 4.261 4.262 और 4.263। तो हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है वो 4.2626 है, तो किसके बीच में आएगा कि 4.262 और 4.263 उसके बीच में आएगा। तो अगेन वी विल मेक अनदर लाइन, तो 4.262 और 4.263 उसके बीच में देखेंगे तो क्या आएगा कि 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 और 4.2626 हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है वो हमारा ये है। ओके, तो ये 4 डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गई, तो दैट इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो सेम थिंग यू कैन ट्राई योर सेल्फ अनदर सम्स सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पता चलेगा। एकदम इजी है, आप इसी मेथड से आप अप्लाई करके ये सम को अच्छी तरह से काउंट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 1.5। इन 1.5 we have to classify the following number as a rational और irrational। फिर रेशनल नंबर है और irrational नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो द फर्स्ट सम, ओके, 2 माइनस √5, ये √5 है, उसका कोई डिवीज़न हो सकता नहीं, जैसे √4 है तो वी कैन नो कि √4 का मीनिंग क्या होता है 2। ओके, √9 है तो उसका होता है 3, लेकिन √5 का कोई वैल्यू निकलती नहीं है। ओके, तो ये जो √5 उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो 2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। गॉट इट, √5 का जो कोई वैल्यू हमें मिलती नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या बोलेंगे उसको, इरेशनल नंबर। नाउ सी द नेक्स्ट सम, जो नेक्स्ट में क्या दिया है कि 3 प्लस √23 माइनस √23। ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या होगा, 3 प्लस √23 माइनस √23, तो प्लस माइनस वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आंसर क्या है, ओनली 3। तो 3 क्या है, रेशनल नंबर। तो थस 3 प्लस √23 माइनस √23 इज अ रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट सम कि 2 √7 डिवाइड 7 √7। ये
अंडर रूट 7 कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या है 2/7। तो 2/7 इस क्या है, रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट 1/√2। अभी अंडर रूट 2 की कोई वैल्यू है नहीं, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट है 2 पाई, पाई की वैल्यू नहीं है, तो उसका भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, सी द फर्स्ट वन के 3 प्लस अंडर रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2। अभी ये मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 3 यानी 3 2 6, फिर 3 से अंडर रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2, उसके बाद 3 अंडर रूट 3 और 2, तो 2 अंडर रूट 3, और प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 6। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द सेकंड वन 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 2। तो इसका क्या होगा, देखो ये प्लस और माइनस है। ओके, जैसे a² माइनस b², ये मेथड से करोगे तो क्या होगा, जैसे ये अंडर रूट ये 3 है तो 3 का स्क्वायर, और ये जो है ये फिर से जैसे मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और दूसरा मैंने बोला कि a² b², यहाँ पर a² b² की मेथड से किया है कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या होगा 9, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो आएगा 6। नाउ सी द अनदर सम के दिया है ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। उसका मीनिंग क्या है कि होल स्क्वायर ने 2 टाइम होगा। दूसरा ये फॉर्मूला है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसका अगर फर्स्ट जो टर्म है अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म अंडर रूट 5, सेकंड टर्म है अंडर रूट 2 प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, तो लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी क्या होगा 5, और ये 2 का 2, और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 यानी अंडर रूट 10, और ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट सम अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, दैट मीन्स ये 1 टाइम माइनस है 1 टाइम प्लस है, तो अपना कौन सा फॉर्मूला a² माइनस b², तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3। ओके फ्रेंड्स, अभी जो ये सम है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सम के रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3। कोई भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9.3 जैसे यहाँ पर बोला है, तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी है। जैसे यहाँ पर देखो आपको जिस तरह से स्टेप दिया है वो स्टेप आप अच्छी तरह से याद रखोगे तो आपका जो सम है बहुत ही इजीली हो जाएगा। जैसे ड्रॉ रे AX, हमें AX ड्रॉ किया, एक A और X हमने क्या किया ड्रॉ किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो हमें याद रखना है कि वो 9.3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। नाउ मेक बी ऑन अ रे AX, एक बी पॉइंट बनाना कौन से AX पर, सच दैट इस तरह के AB इज इक्वल टू 9.3। तो हमें ये AX ड्रॉ किया, उसके बाद हमें A से जैसे B एक पॉइंट ऐसा लेना है, AB ऐसा बनाना है जिसकी वैल्यू है 9.3, तो 9.3 ड्रॉ कर दी। जैसे यहाँ पर AB, यहाँ से लेकर A से लेकर B तक आपका 9.3। ओके, नाउ मार्क C ऑन अ रे, अभी हमें C एक ऐसा लेना है कि BX पर यानी B से आगे, B से X पर एक C लेना है जिसका BC की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, यानी B की जो वैल्यू है वहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे एक हमें क्या लेना है C, यानी BC इज इक्वल टू 1। अभी क्या करना है, तो अभी ये जो है बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, ये A और C का क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। A और C का क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर बनाएगा बाइसेक्टर ऑफ सेक AC को जैसे 2 डिवाइड में करना है, AC को क्या करना है 2 डिवीजन में करना है, यानी मिड पॉइंट फाइंड आउट। इन शॉर्ट ये भी कहेंगे AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करो, तो AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया हमने और उसको पॉइंट दिया P। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि AC को 2 डिवाइड किया, जैसे मीन AP इज इक्वल टू PC,
ए पी इज इक्वल टू पी सी, यानी ए पी और पी सी की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। यानी ए सी को हमने दो ग्रुप में क्या किया, डिवाइड किया। एक ग्रुप का नाम हो गया ए पी और दूसरा का हो गया पी सी। ओके, अभी परपेंडिकुलर बनाने के बाद ड्रॉ अ सेमी सर्कल। अभी ये पी को हमें क्या करना है, सेंट्रल लेकर ए से लेकर सी तक एक सेमी सर्कल बना देना है। ओके, सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करना है, ये जो बी है, ये जो सेमी सर्कल बन गया आपको, तो बी की एक परपेंडिकुलर बनाना है। ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस ए पी। रेडियस के लेना है ए पी लेकर एक सेमी सर्कल बनाना है। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर ए सी एट बी इंटरसेक्स इन सेमी सर्कल एट। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाना है जो ये आपका जो ए सी यानी हमने जो ड्रॉ किया सेमी सर्कल, उसको डी पॉइंट पर क्या होता है, टच करता है। तो यहाँ पर हमने बना दिया एक यहाँ पर डी पॉइंट। अभी ये जो बी डी है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9.3। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9.3। अभी लेट्स द ए एक्स, अभी जो हमारा ए एक्स है, ए और एक्स बी द नंबर लाइन ऑन द बी corresponding 0 and BC is equal to 1 unit. Draw a arc with a center B। अभी यहाँ से मैं आर्क ड्रॉ करनी, जैसे ये हुआ आपका BC, BD जो है वो क्या है, अंडर रूट 9.3। तो इसकी जितनी वैल्यू है तो इतना ही हमें, जैसे इतना मेजरमेंट लेकर राउंडर से हमें क्या करना है, ये ए एक्स पर एक आर्क देनी है और उसको नाम देना है के। तो आपका जो ये बन गया वो बी एक्स हमने बना दिया, बी एक्स पर हमने क्या दिया, एक के पॉइंट दिया। तो जो पॉइंट के है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, अंडर रूट 9.3। ओके, तो यहाँ से हमें बी से देखें कि बी डी की वैल्यू जितनी है अंडर रूट 9.3, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमने अगर ड्रॉ किया तो ये आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये बी के की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 9.3, जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, ये जो समय आपको 2-3 बार सुनना कि जिसकी वजह से ये आपका जो है वो एकदम पॉइंट क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो हेड। अभी जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है 1.6, उसमें क्या करना है, तो फाइंड 64 1/2। 64 का 1/2 है, तो 64 का 1/2 यानी क्या होगा कि 64 क्या है, तो 2�6। ओके, 2�6 भी कर सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो 8 स्क्वायर। जैसे 8 स्क्वायर करोगे, जैसे कि 8 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/2, 2 चला जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 8। यहाँ पर उन्होंने किया है कि 2 का 6 पावर उसके 1/2, तो ये कट करोगे तो क्या आएगा 3। तो 2 का 3 पावर यानी 2 का 3 पावर यानी क्या हो गया 8। नेक्स्ट 32 का कितना है 1/5। ओके, तो 32 उसका पावर कितना है 1/5। तो 32 यानी क्या है, तो 2 का 5 पावर, 2 का 5 और मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 कट कर दो, तो 2 का 1 पावर यानी आंसर हो गया 2। इस तरह से 125 उसका पावर है 1/3। 125 यानी क्या होता है 5 का 3 पावर, 5 का 3 पावर, 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 125 होगा, मल्टीप्लाई 1/3, तो थर्ड कट कर दो, 3 कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 का 1 पावर यानी आंसर हो जाएगा 5। नाउ फाइंड 9 3/2। तो 9 3/2 यानी क्या है, तो 9 का कितने पावर है, 9 है, तो 9 है 3 के 2 पावर, तो 9 का मीनिंग होता है 3 का 2 पावर और मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 कट हो जाएगा, तो 3 का कितना पावर 3 पावर, 3 का 3 पावर यानी क्या हो जाएगा 27। सेम थिंग 32 है, उसमें बोला है 2/5, 32 का पावर कितना है 2/5, तो 32 क्या है, तो 2 का 5 पावर, 2 का कितना 5 पावर और मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 कट हो गया, तो 2 का 2 पावर, 2 का 2 पावर यानी क्या होता है 4। सेम थिंग 16 उसका पावर कितना है 3/4, 16 का 3 तो 16 क्या है, तो 2 का 4 पावर। हमें जो देखना है वो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके साथ ये जो नंबर है उसको क्या करना है, इस तरह से उसका पावर बनाना है, तो पावर क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2⁴ और मल्टीप्लाई 3/4, तो 4 कट हो जाएंगे, तो 2 का 3 पावर, 2 का 3 पावर यानी क्या होता है 8। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये जितने भी सम है वो आपको क्या करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं। अगर कोई डाउट है तो यही का ये वीडियो आप क्या करो 2-3 बार सुनो, तो आपका ये आइडिया पूरा परफेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली। हियर आप
your chapter number 1 is completed. Thank you.